Good morning, students. So today we are going to complete the last topic of this chapter, haloalkane and halorine, and that is optical isomerism. We have discussed in plus one class that isomerism is the property in which different molecules have same molecular formula but different kind of properties. Properties, sometimes this property difference should be in their structure, sometime in their conformation, rotation, conformational isomerism, sometime arrangement, then geometrical isomerism, or variety of other isomerism. But today we are going to discuss optical isomerism. This is the isomerism where the molecular formula, physical properties and chemical properties, they all are same for different molecules, but they differ only by their behavior towards light. Means light is the main concern here. So on the board, guys, so I let you know that optical isomerism is my topic. Optical isomerism. In this topic, I want to discuss that optical isomerism are those isomers in which there is same molecular formula, same physical properties, same chemical properties. Molecular formula, physical properties, chemical properties. They all are same, but they have different behavior towards light. Now what is light? आपको मैं बता दूं कि when light falls on the sample, some of the molecules they rotate the light towards left and some rotates towards the right. But in detail, let us know this phenomena. So ये कहता है कि अगर हम सैंपल को इसमें डाल के बैठे हैं, this is the sample. Here we have calculated sample of the compound. Sample of the compound. So on which हमने ये source of light है, ये source of light suppose sun है या हमारे रूम का बल्ब है, कोई भी है, वहां से निकलने वाली लाइट तीनों डायमेंशंस में जाती है, एक्स वाई पूरे प्लेन में, एज वेल एज हमारी तरफ भी आ रही है ऐसे जेड एक्सिस, हमारी तरफ तीनों डायमेंशन में जाती है, एक्स वाई और जेड डायमेंशन. लेकिन हम नहीं चाहते कि वो इस तरह से जाए. वी वांट किस टाइप की लाइट को हम इसके ऊपर फेंकना चाहते हैं. वी वांट टू क्रिएट प्लेन पोलराइज लाइट. पहले समझ लेते हैं प्लेन पोलराइज लाइट क्या है. प्लेन पोलराइज वो लाइट है जो एक ही प्लेन में चली हो, एक ही प्लेन में, सभी रेज एक ही प्लेन में है. जेड एक्सिस की तरफ कोई नहीं है, इस तरफ को, सभी इस तरफ को हैं, इसी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, एक्स प्लेन में. तो ये करने के लिए हमने क्या यूज किया? प्रिज्म, निकल प्रिज्म. निकल प्रिज्म यूज किया जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है जो पोलराइजेशन करता है. पोलराइजेशन करके उस डिफरेंट प्लेन में जाने वाली लाइट, एक्स वाई और जेड एक्सिस में जाने वाली लाइट को एक सिंगल प्लेन में उसने जो है वो डायरेक्ट कर दिया. अब हम नहीं चाहते कि सिंगल प्लेन में बहुत सारी लाइट की रेज वहां क्रॉस करें. हमने एक स्लिट रास्ते में एडजस्ट कर दी जिसकी वजह से सिंगल रे ऑफ लाइट इन ए सिंगल प्लेन polarized single ray of light is allowed to fall on the sample of the compound. और फिर हम नोट करते हैं कि यहां से तीन तरह की कंडीशंस पॉसिबल हैं, तीन सिचुएशंस पॉसिबल हैं. फर्स्ट, आइदर दैट विल रोटेट द लाइट. ये नॉर्मल लाइट का प्लेन है, यहां से क्या रोटेट कर गई ये लाइट, देख लो. यहां से क्लॉक ऐसे जाती है, 1 2 3 ऐसे होता है ना, 1 2 3 टाइम ऐसे बढ़ता है. तो क्लॉक वाइज अगर वो यहां की बजाय ऐसे रोटेट कर जाए, ये निशान बनाया, तो उसे बोलेंगे हम डेक्स्ट्रो रोटेटेड. डेक्स्ट्रो का मतलब होता है टुवर्ड्स राइट या क्लॉक वाइज. क्लॉक वाइज देखो राइट साइड को नहीं हो रहा है, राइट साइड को मूव कर रहा है. और नीचे का केस है कि नॉर्मल से लेफ्ट की तरफ को, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो लेवो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो मींस टुवर्ड्स राइट एंड लेवो मींस टुवर्ड्स लेफ्ट. तो अगर राइट या लेफ्ट को रोटेट कर जाए तब हम कहते हैं द सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव. द सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव. बट इफ इट रिमेन अनडेविएटेड, ये मूव ही ना करे, सीधी निकल जाए, तो हम उसको बोलते हैं इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो यहां से हम क्या सीखे? द लाइट which is actually planned to fall on the sample, that should be plane polarized light, and that is derived in a single plane with the help of a nickel prism, and the single ray is allowed to fall on the sample and others are stopped with the help of slit. And when they falls on the sample, three situations are there. If light is rotated, any sample rotate the right towards right, that is dextrorotatory. If that rotate the light towards left, that is levorotatory. And if the light ray remain undeviated and moves straightway, then we call the sample, which is the molecule, the sample here present, that is optically inactive. These are the three possibilities. So अभी तक हमने डिस्कस किया कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो है वो क्या होते हैं, उनमें बिहेवियर ऑफ लाइट डिफरेंट. आप देख रहे हो आप डिफरेंट कैसे बिहेव टुवर्ड्स, कुछ का लेफ्ट बिहेवियर, कुछ का राइट, कुछ का ऑप्टिकली जो ना करे बिहेवियर इस तरह का, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस या ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अब हमारे सामने कुछ अहम सवाल पैदा होते हैं यहां पे, वो ये हैं, एक बार कंक्लूडेड वे में जरूर बोल दूं मैं एक बार
कि सैंपल के ऊपर लाइट गिरने के बाद अगर वो लेफ्ट को रोटेट करता है तो लेफ्ट रोटेटरी, राइट को रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और वो जो रोटेट कर देते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव, और जो रोटेट ना करे और लाइट अनडेविएटेड निकल जाए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। और लाइट फॉल करनी चाहिए प्लेन पोलराइज। प्लेन पोलराइज करने के लिए पोलराइजर यूज किया है निकल प्रिज्म। अब मैं आपको और बता दूं कि अगर हमारे पास मिक्सचर हो, जैसे इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो, दोनों का हो 50-50%, तो उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। याद रखिए उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेसमिक मिक्सचर। तो ये सारी चीजें आपको याद रहें कि लेवो क्या होता है, डेक्स्ट्रो क्या होता है, उसका इक्विमोलर मतलब इक्वल कंसंट्रेशन, बराबर बराबर अमाउंट की जब होती है। और इक्विमोलर सॉल्यूट मिक्सचर में अगर हम लाइट गिराएंगे तो क्या होगा, उसमें से जो डेक्स्ट्रो पोर्शन है वो लेफ्ट को रोटेट करेगा, जो लेवो वाला और डेक्स्ट्रो वाला राइट को, और दोनों इक्वल इक्वल होने की वजह से नेट कैंसिलेशन होकर वो अनडेविएटेड निकल जाएगा। दैट्स व्हाई दिस रेसमिक मिक्सचर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस रेसमिक मिक्सचर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये था आपको मैंने जो समझाया कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के लिए हम लैब में हाउ वी क्रिएट इंस्ट्रूमेंटेशन इन द लैब टू मेजर दैट द सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यहां हमने साथ साथ कुछ टर्म्स सीख ली। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, कैसे बनती है, लेवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं, और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कायरल कार्बन। इसको कई बच्चे चिराल पढ़ते हैं, दैट इज रॉन्ग, दैट इज कायरल कार्बन। व्हाट इज कायरल कार्बन, आपको तीन कंडीशन याद रखनी है। फर्स्ट, द एटम व्हिच फॉर्म्स 4 सिग्मा बॉन्ड्स। नंबर 2, दैट शुड बी sp3 hybridized. Number 3, 4 atoms or group of atoms attached should be different. आइए समझते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास एक सैंपल ये है, C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH मींस COOH, C OH H एंड CH3। तो यहां पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही है COOH ऊपर, और C और H और CH3 और OH। यहां पे कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3। ये है आपका लैक्टिक एसिड। मैं आपको बता दूं दिस इज लैक्टिक एसिड। तो इस लैक्टिक एसिड में कौन कौन सी कार्बन कायरल है, पहली, दूसरी और तीसरी में से। इसको देखें तो इसके मैंने कंडीशन क्या बोली थी, मस्ट हैव 4 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहां ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, डबल में से एक सिग्मा है, एक पाई है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कायरल कार्बन, दिस इज नॉट कायरल कार्बन। इसको देखिए, यहां पे ये ग्रुप H है, दूसरा ग्रुप CH3 है, तीसरा ग्रुप OH है, चौथा कार्बोक्सिलिक, चारों डिफरेंट हैं। दिस इज कायरल कार्बन। आई एम मार्किंग दिस विद हेल्प ऑफ स्टार। इस कार्बन के 3 H एक जैसे हो गए, डिफरेंट होने चाहिए, ये भी डिफरेंट, दे शुड बी डिफरेंट, इसलिए ये भी कायरल कार्बन नहीं है। तो कायरल कार्बन हमने क्या सीखी, इसके साथ चारों मोड सिग्मा होने चाहिए, चारों sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए ताकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बने, एज वेल एज एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम, वो सारे चारों के चारों डिफरेंट होने चाहिए, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। अब हमने कायरल कार्बन क्यों सीखी, क्योंकि अगर हमें कहा जाए दैट कैसे आप पता लगाएंगे, हमें पेपर में आ गया, 4 ऑप्शंस आ गई, हमें कहा गया बताइए whether that substance is optically active or not, तो हम इसे निकाल लेंगे कि उसे लैब में लेके जाएंगे और उस सैंपल के बीच में एज सैंपल उसे एक्सपेरिमेंट में रखेंगे, लाइट पे फेंकेंगे और देख लेंगे इफ दैट विल रोटेट दैट इज optically active, if that will not rotate that will move straight that will be optically inactive। बट अगर कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तब हम लैब में नहीं जा सकते, तब हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कायरल कार्बन हो दैट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। जिसमें एक कायरल कार्बन है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर किसी के पास 2 कायरल कार्बन है तो पंगा पड़ गया। तो हो सकता है कि जो लाइट यहां से आई, ये है वो सैंपल, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं ये। अब लाइट प्लेन पोलराइज यहां पे गिरी, जब वो आके यहां पे टकराई, इसने इसको डाइवेट किया क्योंकि कायरल कार्बन वाले एटम डाइवेट किया। दूसरी अगर कायरल कार्बन ने उसको डाइवेट ऐसे कर दिया तो फिर से लाइट वहीं पहुंच गई।
डेविएट अंदर हुई, लेकिन डेविएशन एक दूसरे की, कायरल कार्बन दोनों अंदर जो है वो अपोजिट डेविएशन करके नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो कर सकती हैं। इसलिए अगर टू कायरल कार्बन है तो दैट कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव एज वेल एज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों पॉसिबिलिटी हैं अगर दो कायरल कार्बन है, क्योंकि फिर डेविएशन। लेकिन अगर सिंगल है तो सिंगल तो भाई डेविएट करेगी ही, सिंगल पे जब वो कायरल कार्बन पे गिरेगा वो डेविएट करेगी, लाइट या तो लेफ्ट को या फिर लाइट राइट को डेविएट कर जाएगी, लिबोडेक्स्ट्रो बन जाएगा। दो है तो डेविएशन टू पॉसिबल है। अगर पहली ऐसे हुई दूसरी भी ऐसे होगी तो डेविएशन आ जाएगी, लेकिन अगर पहली ऐसे हुई दूसरी ऐसे तो कैंसिल होके नेट कैंसिल जीरो होके वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। ये कहना चाह रहा हूं मैं कि कायरल कार्बन से हम पता लगाते हैं कि सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, लेकिन समझने वाली बात क्या है कि अगर कायरल कार्बन एक है तब तो वो ऑप्टिकली एक्टिव ही है, जैसे कि लैक्टिक एसिड था आपका। अब लैक्टिक एसिड की अगर बात करें, इसमें एक कायरल कार्बन है, अगर इसमें एक कायरल कार्बन है, इफ इट कंटेन्स ओनली वन कायरल एटम देन दैट इज डेफिनेटली एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और अगर एक से ज्यादा हैं तो चांसेस ये हैं कि दैट कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव और कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब बात करते हैं कि टू वाले में क्या चांसेस बनते हैं। वन वाला मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, ये लैक्टिक एसिड। टू वाले में क्या चांसेस बनते हैं, अब टू वाला एग्जांपल लेते हैं, COH OH H CHOH एंड CH3। सपोज ये हमारे पास कंपाउंड है एक, और दूसरा कंपाउंड है CHOH COH और HCH3। आप देख सकते हैं बोथ दिस कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड OH ग्रुप और CH3 ग्रुप और कार्बन सब सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बनेगा। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको ये समझ आएगा कि अगर हम इसके बीच में, इस कंपाउंड के बीच ऊपर को मिरर के अंदर देखें तो मिरर के अंदर कैसे दिखता है। आपने देखा होगा मिरर के अंदर जब आप देखते हैं आपका हैंड कैसे होता है, थंब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिंगर। जब आप इसे मिरर के अंदर देखते हैं तो ये अपोजिट हो जाता है। कैसे ये दिखता है आपको, थंब इस तरफ दिखता है, फर्स्ट फिंगर सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपको ऐसे दिखता है। मतलब लेफ्ट वाली साइड राइट में हो जाती है, राइट वाली लेफ्ट में। और जब हम, देखिए आप ध्यान से देखिए, जब हम लेफ्ट से राइट उसको लाएंगे तो एक दूसरे को वो इंपोज नहीं कर पाएगी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा नहीं आ रहा है, वो पूरी तरह इंपोज उसको ढक नहीं पा रही है। इसलिए ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इसकी मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज है। मिरर के अंदर अगर आप इसे देखेंगे तो यही दिखेगा, बट ये इसको इंपोज नहीं कर पा रहा है। पूरे को उठा के इसके ऊपर रखूं तो OH H के ऊपर आ रहा है, ये H इस OH के ऊपर आ रहा है, ये दो तो इंपोज कर गए लेकिन ये प्रॉपर इंपोज नहीं कर पाए। तो इस तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स को कहा जाता है एनेंशियोमर्स। So what are enantiomers? Note down the guys, इसको जरूर नोट करिए। These are the compounds। एक बात बता दूं कि एनेंशियोमर एक ही कंपाउंड होता है, उसकी वो इमेज बनती है, इसकी पेयर नहीं होता। This is the molecule which have, ये पेयर होता है, पेयर में होते हैं एनेंशियोमर्स, और ये पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं लेकिन एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं कर पाते, उनको बोलते हैं हम एनेंशियोमर्स। तो आप याद रखिए एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। और ये एनेंशियोमर के बाद हम बात करेंगे, अगर यहां पे ये मैंने डिसिमेट्री बताई आपको, वैसे आपको सिंपल टर्म में बताऊं तो जो डिसिमेट्रिक होते हैं ना, कायरल कार्बन का एक अलग बात है, कायरलिटी एक अलग बात है। कायरल कार्बन सिंगल है तो वो डिसिमेट्रिक ही हो गया, लेकिन दो डिसिमेट्रिक, अब देखो ये है COH HOH OH H और COH। अब इसका ये जो अपर हाफ है, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज द लोअर हाफ। इसलिए जब ये कायरल कार्बन है, देख लो इसका ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये और नीचे वाला अलग, ये भी कायरल है, ये अलग, ये अलग, ये और ये पूरा अलग, तो है दोनों कायरल। लेकिन एक जो रोटेट कर रहा है लाइट को लेफ्ट की तरफ, एक रोटेट कर रहा है राइट की तरफ, कैंसिल होकर क्या जा रहा है, अनडेविएटेड। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जो दो कायरल कार्बन के अंदर हो लेकिन अपोजिट डेविएशन होने की वजह से नेट कैंसिल करके ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए वो, और इसका कारण क्या है, बिकॉज देयर अपर हाफ इज एक्जेक्टली सिमिलर एज द लोअर हाफ, उनको कहा जाता है मीजोमर्स। और जिनका अपर और लोअर हाफ सेम ना हो, हाँ
वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो। ये सिंगल मॉलिक्यूल होता है लेकिन ये पेयर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, जैसे मिरर में एक दूसरे को दिखते हैं, इसको मिरर में देखा तो ऐसे दिखेगा, ये मिरर में ऐसे दिखेगा, बट एक दूसरे को सुपर इंपोज ना कर पाए। हाँ, आप मिरर में थोड़ी देखोगे, आप एग्जाम में कैसे इसको देखोगे मैं बता दूं। 180 डिग्री एंगल से पूरा रोटेट करो, H पहुंच गया यहां से उस तरफ, ये देखो OH परे से घूम के इस तरफ, ये घुमाया OH उस तरफ, H इधर, तो 180 से घुमा दो, फिर देखो अगर वो सेम मॉलिक्यूल दिख जाता है वैसा रोटेट करने के बाद तो समझ लो मिरर इमेज है। फिर देख लो इंपोज करके, इंपोज जो करना है तो पूरा मॉलिक्यूल उठा के ऊपर रखो ऐसे, इंपोज करके देख लो। फिर अगर वो नहीं आता तो आप बोलेंगे दिस इज द पेयर ऑफ एनेंटियोमर। तो आपको एग्जाम में पहचानने आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल इज एनेंटियोमर। तब आपको देखना है ऐसे करके, उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, मिरर इमेज चेक करनी है, सुपर इंपोजिबलनेस चेक करनी है। और अगर मेसोमर पूछे तो आपने देखना है अपर और लोअर। मैंने बता दिया कि ये जो हमने कायरल कार्बन सीखी थी कि सिंगल कार्बन के साथ वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है और 2 के साथ वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी 100% श्योर नहीं है, लेकिन कुछ केस में वो जो कायरल कार्बन है उनकी अरेंजमेंट और तरह की हो सकती है, तब वो शायद एक ही तरफ को डाइवर्ट करे और ऐड होकर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। लेकिन यहां पे एक केस मैंने ऐसा बताया जहां पे कैंसिल करके वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो गए। तो कायरलिटी का बेसिक मीनिंग है डिसिमेट्री। जो भी मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्री हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिवनेस लाती है। जो सब्सटेंस सिमेट्रिक होते हैं उनके अंदर से लाइट सीधी निकल जाती है, नेट कैंसलेशन दोनों तरफ इक्वल होती है, इसलिए वो सब हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इसलिए कायरल कार्बन वाले हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि कायरल कार्बन डिसिमेट्रिक है, उसके चारों ग्रुप अलग होते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा उनके अंदर कायरल कार्बन आ जाए तो डिसिमेट्री को वो बैलेंस कर देते हैं कई बार, इसलिए कई केसेस में वो मोर देन 1 कार्बन के साथ भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं। इस यहां से हमने 2 तरह के आइसोमरिज्म सीख लिए, 2 स्पेशल केसेस सीख लिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के, एनेंटियोमर्स जिसका मैंने स्पेशल आपको समझा दिया, एज वेल एज आपको मैंने साथ में सिखा दिया मेसोमर। हाँ, इसके अलावा एक चीज और आपको मैं सिखा दूं कि एक डाइस्टीरियोमर्स भी होता है, डाइस्टीरियोमर्स। Diastereomers are not mirror images of each other, and as well as they are not superimposable, but their chemical properties are exactly similar. उनकी chemical properties सेम होती हैं जैसे इनकी physical properties और chemical सेम थी, लेकिन वो एक दूसरे की mirror image नहीं होते जैसे कि ये हैं। तो enantiomer और diastereomer में एक difference है। enantiomers are mirror image, they are not mirror image, they are non superimposable, they are also non superimposable. So this is the simple case, and mesomer upper half and lower half are same. So अभी I am not discussing the second level of this. आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, पेयर दिया होगा, आपको बोलेंगे कि इस पेयर में से पहचानिए एनेंटियोमर कौन है, पहचानिए डायस्टीरियोमर्स कौन है, पहचानिए मेसोमर्स कौन से हैं, बताइए रेसिमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है। आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इस क्वेश्चन का एक अलग लेवल पे लेके जाना हो तो ऐसा आ सकता है कि नाम आए कि लैक्टिक एसिड बताइए, एनेंटियोमरिज्म दिखाएगा या क्या दिखाएगा, तो उनके नाम से आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। वो स्ट्रक्चर और उनकी प्रैक्टिस आप आई वांट यू टू प्रैक्टिस एट योर ओन लेवल, ताकि आप अच्छे से उसे कर पाएं। और एक अच्छे लेवल पे इसको पहुंचाने के लिए हम क्लासरूम में इसको एक बार फिर डिस्कस करेंगे। दिस इज जस्ट ए मैटर ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर यू व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। दैट्स ऑल, बाय बाय।